اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین. اما بعد فقد قال امامنا جعفر بن محمد الصادق البار الامین. ان للہ حرما وهو مکہ الا وان للرسول حرما وهو المدینہ وعلا وللہ ولامیر المؤمنین حرما وهو الکوفۃ الصغیر. الا ان للجنۃ ثمانیۃ ابواب ثلاثۃ منہا الی قم تقبضھا امرأۃ من ولدی تدخل بشفاعتھا شیعتی الجنۃ باجمعہم. صلوات صلی اللہ علیہ صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج ورچوئل جشن منایا جا رہا ہے کریم اہل بیت سیدہ فاطمہ معصومہ قم کا. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور یہ عزت اللہ عز و جل نے المہدی فاؤنڈیشن کو، المہدی سنٹر کو اور المہدی ٹی وی کو دی ہے کہ کم از کم ہم نے ہر ایک معصوم اور ہر ایک تالی تلو المعصوم نائب معصوم کا دن منایا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج میرا نہیں خیال ہے کہیں پر بھی یہ جشن منایا جا رہا ہو. اللہ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے. آج ہمارے حیدری ملنگ ثنا خان محمد و آل محمد سے بات ہو رہی تھی جب میں اسٹیٹن آئلینڈ سے ڈرائیو کرتا ہوا آ رہا تھا، اور جناب خاور علی خاوری صاحب سے بھی، اور حاجی محمد رزاق گجر صاحب سے بھی، اور حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب سے بھی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج دیکھیے میں ڈرائیو کر کے آیا ہوں صرف اس لیے کہ ہمارا اسٹیٹن آئلینڈ والا ابھی جو اسٹوڈیو ہے وہ چل نہیں سکا، آج چلنا تھا. تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں کہ میں معصومہ قم کی ولادت کا جو جشن ہے اسے مس کروں. اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو کسی اور کو کہہ دیتا کہ آپ پڑھ دیجئے آج، مگر میں چاہتا ہوں، میں عقیدت سے جو پڑھتا ہوں اور جو مجھے
عزت اللہ بخش رہا ہے. ان پاک ہستیوں کی خدمت کی جب تک میری جان ہے میں اسے اویل کروں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بناؤں. ماشاءاللہ ہمارے پڑھنے والوں نے بہت اچھا پڑھا ہے. نیو جرسی کے بھی جو صاحب تھے انہوں نے بھی اچھا پڑھا، ذکی صاحب نے بھی، راشد زیدی نے بھی، اور قمبر نے بھی، ماشاءاللہ نوید جعفری نے، ماسٹر صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا اور میں شکر گزار ہوں. بہترین نظامت بھی ہوئی. کچھ لوگوں کو مس بھی کر رہا ہوں، وہ آئندہ تشریف لائیں. طویل زحمت نہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اپنے لیے بھی. اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے. آپ کام کاج چھوڑ کر تشریف لا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آج عزت حاصل کروں گا. یہ میں قم کے بعد آج پہلی مرتبہ پوری روایت بیان کر رہا ہوں. میری دوستی تھی قم میں، ایک بزرگوار تھے شیخ صاحب، وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے اور انہوں نے کتاب لکھی تھی تاریخ قم. میں ان کے پاس کتاب لینے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی قیمت ہے. تو میں نے کہا، آغا صاحب شیخ تھے، بڑے عالم، بہت بڑے عالم تھے. میں نے کہا کہ آغا صاحب قیمت، فارسی میں نے کہا قیمت اس کی یہ ہے کہ میں ایک غریب الوطن طالب علم ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے کیونکہ شادی تو میری ہوئی نہیں ہوئی، یہ قیمت ہے، اور کتاب دے دیجئے. انہوں نے کھانا کھلا دیا اور کتاب دی. ذرا روایت ملاحظہ فرمائے. پہلے تو قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، عن الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ حرمن، اللہ کے لیے ایک حرم ہے، وہو مکہ، اور وہ ہے خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے. اللہ کا حرم مکہ، جسے الحرم المکی بھی کہتے ہیں، کعبہ بھی کہتے ہیں، بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے. الا ان لرسول اللہ حرمن، اور اللہ کے رسول کے لیے بھی ایک حرم ہے، وہو المدینہ، وہ ہے مدینہ. الا وان لامیر المؤمنین علیہ السلام حرمن، میرے جد علی کے لیے بھی حرم ہے، وہو الکوفہ، وہ کوفہ الصغیر میں ہے. وَأَنَّا قُمْ، بلکہ یوں ہے، وہ ہے کوفہ میں، یعنی وہ نجف میں. وَأَنَّا قُمْ الْكُوفَةَ الصَّغِيرَةَ، اور قم نجف اصغر ہے. یہ عجیب جملے ہیں روایت کے. قم نجف اصغر ہے. الا ان للجنت ثمانیۃ ابواب، آگاہ رہو، جنت کے ہے کل 8، جنت کے ہے کل 8 دروازے. ثلاثۃ منہا الی قم، 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم سے جنت میں جاتے ہیں. میں نے روایت پڑھی تھی، القمیون لا یحاسبون ویدخلون الجنت بغیر حساب، قم والوں کا حساب نہیں ہوگا، جنت میں ڈائریکٹ قم والے اٹھتے ہی چلے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ جو دروازے ہیں، نقبض فیہا، وہ کس کے قبضے میں ہوں گے؟ امرأۃ من ولدی، وہ میری اولاد سے ایک بی بی ہوگی، اسمہا فاطمہ، اس کا نام ہوگا فاطمہ، بنت موسیٰ علیہ السلام، اس کا نام ہوگا فاطمہ
میرے بیٹے موسیٰ کی وہ بیٹی ہوگی. اب یہ ہے جملہ جو آج میں ہدیہ کر رہا ہوں. تاریخ قم کے مصنف کو بھی اس کا ثواب چلا جائے اور جو کھانا انہوں نے کھلایا تھا اس کا بھی ثواب ہو ایک غریب الوطن مسافر کو, طالب علم کو, اور ان کی جو کتاب کا چھپنا ہے انشاءاللہ اور مجھ تک پہنچنا, اس کا اجر و ثواب بھی ان قبلہ و کعبہ تک چلا جائے, ان مجتہد تک, شیخ تک. یہ ہے جملہ, ذرا غور فرمائیے اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے بی بی فاطمہ معصومہ قم کے مقام کا. تدخلو بشفاعتها شیعتی الجنت باجمعہم, بلکہ تدخلو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تدخلو بشفاعتها, داخل فرمائیں گی معصومہ قم, میری پوتی. امام صادق کہہ رہے ہیں بے شفاعتہا, اپنی شفاعت سے, شیعت الجنتا بے اجمعہم, مجھ جعفر صادق کے سارے شیعوں کو میری پوتی فاطمہ معصومہ جنت میں داخل فرمائیں گی. یا علی اللہم صلی علی محمد. میرے ایک استاد بزرگوار تھے, وہ معصومہ قم علیہ السلام کے روضے کے خادم تھے, اور تھے وہ مرجع تقلید, آیت اللہ العظمی, اعیان الشیعہ میں سے جھاڑو دیتے تھے. اور انہوں نے 60 سال تک بغیر کسی ناغے کے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے پورے 60 سال تک معصومہ قم کے دروازے کا جھاڑو دیا ہے. ہمارے لوگ تو نخرے کرتے ہیں نا, مسجد کا جھاڑو کہہ دیں تو ان کی پریسٹیج ڈیمیج ہو جاتی ہے, ان کا امیج خراب ہو جاتا ہے, ان کی وہ جو دنیاوی شان و شوکت ہے اس میں حرج آنے لگتا ہے. وہ نائب امام 60 سال مسلسل جھاڑو دے رہا ہے, گھنٹہ پہلے آتے تھے. اور یہ قبلہ و کعبہ نے خود بتایا کہ بیٹا ایسے کبھی نہیں ہوا کہ گھنٹہ پہلے دروازہ کھل جاتا ہو. دروازہ کھلتا تھا آدھا گھنٹہ پہلے. میں گھنٹہ پہلے اس لیے جاتا تھا کہ اس نوکری کے لیے کوئی مجھ پہ سبقت نہ لے. میں پہلا بندہ ہوں جو جھاڑو دوں معصومہ قم کے صدر دروازے کا. رحمت اللہ علیہ ورحم اللہ والدیک. احسنت. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ماؤں بہنوں, بیٹیوں, تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کرو. یہ جشن اس لیے ہوتے ہیں, یہ ذکر ان ہستیوں کا اس لیے ہے کہ ہم اپنی اکڑ وغیرہ, غرور, تکبر, نخوت, جھوٹی شانیں جو ہم نے اپنی بنا رکھی ہیں ان کو مطلقاً خیر آباد کہہ دیں. باقی ماندہ زندگی میں بالکل مطیع ہو جائیں اللہ کے, رسول کے, مولا علی کے, علی و بطول کی اولاد کے. وہ اتنے کریم ہیں. امام صادق کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری پوتی دفن ہوں گی, جو میری پوتی ہوں گی, فاطمہ ان کا نام ہوگا, بنت موسیٰ, تدخلو, وہ داخل فرمائیں گی. اللہ اکبر. وہ داخل فرمائیں گی, خود داخل کریں گی. بے شفاعتہا, اپنی شفاعت کے ذریعے.
शियतिल जन्नता, मेरे शियों को जन्नत में बे अजमइहिम, मेरे जितने शिया होंगे सारे मासूम कुम की शफात से जन्नत में चले जाएंगे। अब अंदाजा हुआ आपको कि ये जश्न क्यों आप मना रहे हैं। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से एक दिन पूछा, मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह शेख अली पना इश्तिहारदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, 100+ उनकी ज़िंदगी हुई, ना ऐनक लगी ना कमर खमीदा हुई, और मरते दम तक तकरीबन दर्द सारी नहीं हुआ। 113 के शायद हो के इस दुनिया से गए। हमसे तेज भागते थे, जिस वक्त हम 20 के थे हमसे तेज भागते थे उस वक्त। वो मेरे असातिज़ा आयतुल्लाह उज़्मा शेख नासिर मकारिम शिराजी अभी ज़िंदा है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मर्जा तकलीद है। मेरे एक और उस्ताद आयतुल्लाह उज़्मा शेख जाफ़र सुबहानी मुद्दज़िल अली, ये जो मेरे उस्ताद हैं, आप गूगल पे चले जाएं, इनका नाम टाइप कर दें, आयतुल्लाह उज़्मा आगा शेख हुसैन नूरी, ये भी मेरे उस्ताद हैं। आयतुल्लाह उज़्मा शेख वहीद खुरासानी, ये भी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। ये चारों जिंदा हैं। आयतुल्लाह उज़्मा मीर्ज़ा अली मिश्किनी वो वफ़ात पा गए हैं। आयतुल्लाह उज़्मा आगा फ़ाज़िल क़फ़क़ाज़ी वो वफ़ात पा गए हैं। आयतुल्लाह उज़्मा गुल पायगानी वो वफ़ात पा गए हैं। मेरे बुज़ुर्ग आयतुल्लाह उज़्मा साफ़ी गुल पायगानी इस वक्त भी बैठे हैं। मेरे एक और बुज़ुर्ग आयतुल्लाह उज़्मा शुबैरी ज़ंजानी इस वक्त भी बैठे हैं। वो हरम में नमाज पढ़ाते थे, अब ना मालूम पढ़ा रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे उलमा तो बैठे हैं इस वक्त ज़िंदा, बहुत सारे चले गए। जैसे मेरे बुज़ुर्ग आयतुल्लाह उज़्मा शेख तकी बहजत, ये सारे के सारे, ये मेरी तरफ इशारा देखिएगा, ये देखिएगा, ये अपनी आवाज़ से यूं, ये हमारे आगा अली रज़ा को अल्लाह हिदायत करे, कभी मेरी सीट को ठीक नहीं करते, वो भी मुझे ठीक करनी पड़ती। ये यूं, ये जो आवाज़ है ना, देख रहे हैं, अपनी आवाज़ से बाकायदा यूं झाड़ू देते थे, और जो मिट्टी लगती थी उसको यूं फेरते थे अपने मुंह पे। और मेरे उस्ताद आयतुल्लाह इश्तिहारदी अपना इमामा उतार के उससे साफ करते थे, और बगैर इमामे के घर जाते थे, उस इमामे को सीने के साथ लगा के यूं जाते थे कि इस पर मासूमा कुम के रोज़े की गर्द पड़ी है, इसको जाके महफूज कर लूं, फिर जाके इमामे को धुलवाऊंगा। ज़रा अकीदत देखें आप। हज़रात व ख़वातीन, ये बात याद रख लीजिए कि यही जो मेरे उस्ताद हैं आयतुल्लाह उज़्मा अबुल माली सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मरजा तक़लीद, इनके वालिद थे आयतुल्लाह सैयद महमूद मराशी, इनके वालिद थे। इनके वालिद नजफ़ में थे। वहाँ उन्होंने 40 दिन तक अमल किया, वजीफ़ा किया। मैं आपको आज एक हदिया दे रहा हूँ। मेरे एक दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी क़ुद्दस सिर्रो आज दफन हो गए वादी हुसैन अलैहिस्सलाम कराची। उन क़िबला ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। ज़ाहिरन मुझे जहाँ तक याद है, उन्होंने यही फरमाया था कि मेरी ज़िंदगी में किसी को ये न देना, मैं जब चला जाऊँ और तू ज़िंदा हो तो दे देना। आज मैं, क्योंकि शाम को छोटी सी मजलिस भी पढ़ूँगा, और बुध को तो डिटेल से आज मजलिस होगी, बुध को डिटेल से होगी इंशाअल्लाह, आप सब पढ़ेंगे 7 बजे। आज शाम को मैं 9:30 बजे मुख्तसर सी एक मजलिस पढ़ूँगा। तो मैं चाहता हूँ अपने उन दोस्त बुज़ुर्ग का वो जो हदिया उन्होंने मुझे दिया सन 1999 में, 89 में,
وہ मैं आपको दे दूं। कितने साल हो गया? 31 साल के बाद मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह इस हदिये को संभाल लीजिए। फिर मैं आगे महमूद मराशी की बात अर्ज करता हूँ। क़िबला तालिब जौहरी साहब ने मुझे बताया कि अगर कोई बंदा चाहे कि वो मकरूज न रहे और पैसा उसके पास फरावान हो जाए, पैसा उससे संभाला न जाए, तो दो अमल है, मैं आज दोनों बता रहा हूं क्योंकि क़िबला ने वही फरमाया था मेरी ज़िंदगी के बाद बता देना, तो मैं आज पहले दिन ही बता रहा हूं ताकि उनकी रूह भी खुश हो जाए कि कितना अमीन है, इसने आज तक नहीं बताया। खुदा न खास्ता इसका मतलब ये नहीं था, वो बड़े करीम थे, सखी थे, बहुत मेहरबान थे, अतूफ़ थे। वो सिर्फ इसलिए कि लोग नाकदरी करते हैं बाज़ चीज़ों की, जैसे रिवायात में भी है कि बाज़ असरार आले मोहम्मद को लोगों तक ना दो, आम ना करो, पब्लिक ना करो, उनके पास कदर नहीं है इसकी, इसलिए बाज़ आयान मना फरमाते हैं। तो क़िबला ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें आज कुछ चीज़ दूंगा और मैं नहीं लिखूंगा, कोई गैबी ताकत लिखेगी। मैं दुआ पढ़ूंगा, तुम सफ़ेद कागज़, ये उनके घर की बात है नॉर्थ नाज़माबाद में, तुम सफ़ेद कागज़ रखोगे और उस पर लिखा हुआ आएगा, जो लिखा हुआ आएगा वो तुम्हारे लिए वजीफा है, वो तुम कर लेना। वो मैंने सफ़ेद कागज़ लिया, बिल्कुल सफ़ेद। क़िबला ने फरमाया आगे पीछे देख लो, मैंने कहा कुछ नहीं। कहा वो सामने जो एक डब्बा पड़ा है उसके अंदर रख दो, ढक दो। ढक दिया। थोड़ी देर के बाद फरमाने लगे कि आप ज़रा खोलें ढकने को। खोला तो उसमें पूरा लिखा हुआ था, मेरा नाम लिखा हुआ था, मेरे वालिद का नाम लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि आप रात को एक अमल और दिन को एक अमल करें। जो रात का अमल लिखा हुआ था वो ये था कि इस्तिग़फ़ार कबीर, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अर्रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्ज़ मिन जमीअ ज़ुल्मी व जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ़्सी व अतूबु इलैह 400 मरतबा आपने पढ़ना है। वबिल असहारे हम यस वबिल असहारे, और सहर के वक्त वो यस्तग़फ़िरून, कुरान भी कहता है। ये एक अमल है। दूसरा अमल ज़ियारते मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारते आशूराए मारूफ़ा, 100 लान 100 सलाम और दुआए अलकमा के साथ। ये दयानतदारी के साथ अपने दोस्त का पूरा अमल आपको बता दिया है। आज से बेशक कीजिए, शुरू कीजिए, मैं भी करता हूँ। कल से पहले तो मैंने किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज भी अदा हुआ। ये मेरा जो अमेरिका का वीज़ा लगा, आज आपको मैं बताऊं, वो इस अमल की वजह से लगा था। कोई सिफारिश नहीं थी, अल्लाह जानता है, कोई सिफारिश नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ये अमल मैंने किया, 40 दिन अमल मुकम्मल हुआ, मेरा वीज़ा लग गया। अब आप मेहरबानी फरमाकर इसको अमल को मैं लिख कर भी भेज दूंगा। अब तो क्योंकि क़िबला चले गए दुनिया से, तो इंशाअल्लाह बरज़ख की जन्नत से वो मुझे शाबाश भी देंगे कि शाबाश, तू बड़ा अमीन था, तूने 31 साल तक किसी को नहीं बताया। सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि नाकदरी ना हो, वरना वैसे बताता रहता हूँ, इस तरह नहीं, यूँ नहीं जो आज बता रहा हूँ कि ये दो अमल तौअम करने इकट्ठे। वैसे तो सबको बताया हुआ है, इस्तिग़फ़ार कबीर का अलग अलग बताया है, ज़ियारत आशूरा का। खैर ये बात तो बीच में आ गई। आज का गिफ्ट मुझसे कबूल फरमा लीजिए। जो वक्त दे रहे हैं उनको अंदाज़ा भी हो जाए कि मैं कितनी खिदमत करता हूँ आपकी और कितना वेल विशर हूँ आप तमाम हजरात को, ख़वातीन का मैं आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ। आप बहुत मेरा ख्याल भी रख रहे हैं, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आप सुनते हैं, देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
अजर व सवाब अल्लाह आपको दे, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, आपके रिज़्क़ व माल में इज़ाफ़ा हो। बात वापस चली जाए। महमूद मराशी नजफ़ी तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने 40 दिन का अमल किया। याद है आपको यही बात, यहीं से छोड़ी थी। 40 दिन का वजीफ़ा किया। कुछ वज़ाइफ वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि हर एक तकरीर में कुछ ना कुछ बता दूंगा, बशर्ते के नाकदरी न की जाए। तो उन्होंने अमल किया कि मैं किसी इमाम को देखूं, ख़ास तौर पर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इन दो में से किसी एक की ज़ियारत कर लूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जद्द नामदार बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मरकद मुताहर, मज़ार मुताहर, रोज़ा मुबारक कहाँ है, यानी कहाँ उनकी कब्र है। रोज़ा तो ज़ाहिर नहीं है, तो मज़ार कहाँ है। तो फरमाते हैं 40वें दिन मुझे इमाम अलैहिस्सलाम मिले आलम रोया में, और मैंने उनसे पूछा कि सरकार बता दीजिए कि आपकी दादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार मुक़द्दस कहाँ पर है। तो उन्होंने फरमाया अलैका बिकरीम अहलिल बैत, तुझ पे ज़रूरी है कि तू करीम अहल बैत की ज़ियारत कर। आयतुल्लाह महमूद मराशी वालिद आयतुल्लाह अल-उज़्मा शहाबुद्दीन ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, करीम अहल बैत यानी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की कब्र का निशान पूछ रहा हूं कि मैं उनकी ज़ियारत करूं। तो उन्होंने जवाब में फरमाया अलैका के बाद फरमाया मासूमतिल कुम, कुम में जो मासूमा है फातिमा, उनकी ज़ियारत कर। तब वो मूव हुए, यहाँ आए, शहाबुद्दीन मराशी भी यहाँ आए, और तकरीबन 60 साल तक उन्होंने झाड़ू दिया और मरजाए तकलीद साहिबजादे उनके करार पाए। और मुझ फ़कीर ने भी जितना अरसा मैं रहा हूँ, मेरे दोस्त, ahbab, शागिर्द, उस्ताद, बुज़ुर्ग खुर्द बताएंगे आपको, घर वाले भी बताएंगे कि मैं बस लगते तक मासूम कुम की नमाज मगरिबैन अपने उस्ताद के पीछे तर्क नहीं करता था जमात की, बल्कि मैं दर्स रखता था वहीं पर, मगरिब से पहले भी, मगरिब के बाद भी, कि मैं बाउंड रहूं कि मैं किबला काबा के पीछे नमाज बाजमात भी पढ़ूं और मासूम कुम की ज़ियारत भी डेली करूं। और मैंने जो या अली मैंने जो बुजुर्गान व अजीज़ान ज़ाती तौर पर जो मैंने खुद मोजज़ात देखे हैं, करामात देखी हैं, इन पर मुझे आप 100 मजलिस पढ़ाएं, 100 तकरीर कराएं, तो मोजज़ात ज़्यादा हैं, करामात ज़्यादा हैं, तकरीरें कम हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह गवाह है, कुरान यहां मौजूद है। मैंने अपनी आंखों से देखा, नाबीना अंदर गया। अभी मैं दर्स पढ़ा के फारिग नहीं हुआ था, बीना वापस आया। मैंने अपनी आंखों से देखा, लूले लंगड़े अंदर जाते थे, 5 से 10 मिनट के अंदर भागते हुए बाहर निकलते थे। कि मैं इसका आई विटनेस हूं। और एक एजाज मुझे यह भी अल्लाह ने दिया है कि मैं ऑफिशियली मैं
खाक रूब हूं, पियन हूं, नौकर हूं, जारूब कश हूं मासूम कुम का। क्योंकि जो चीफ खादिम थे आगा रज़वी, वो मेरे शागिर्द थे, तो उन्होंने मुझे बाकायदा खादिम बनाया, मुझे खादिम का टाइटल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के यहाँ भी मुझे खादिम का टाइटल मिला हुआ है, और बीबी मासूमा कुम का तो खैर मैं बहुत ही अदना खादिम हूँ, और रेगुलर उनका मैं जारूब कश भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिज़ा की तअसीब में। बस दामन वक्त कोताह हो रहा है। बीबी के जो अलकाब लिखे हैं तारीख़ कुम में, वो है हुज्जत, अमीना, हमीदा, रशीदा, तकिया, नकिया, रजिया, ताहिरा, बर्रा। हुज्जत यानी अल्लाह की हुज्जत, अमीना यानी ट्रस्टवर्दी, हमीदा जिनकी तारीफ अहले बैत करें, मासूम करें, रशीदा नेक पाक, नकिया जिसकी नजाबत खानदान पाक हो, तकिया जो खुद भी पाक हो, रजिया जो राजी हो रिज़ाए इलाही पर, ताहिरा जो पाक हो, बर्रा जो नेक हो। ये अलकाब मैंने कुतुब में पढ़े हैं जनाब फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के। एक रिवायत और सुन लीजिए ताकि आप जाएं ज़ियारत पे। मन ज़ारा आरिफन बिहक़्क़िहा फलहुल जन्नह, जो बीबी की ज़ियारत करे हक़ मासूमा की मारिफत रखते हुए, फलहुल जन्नह, क़यामत के दिन जन्नत के सिवा उसका कोई ठिकाना ही नहीं होगा। एक रिवायत में मैंने पढ़ा है वाजबत लहुल जन्नह, उस बंदे पे जन्नत वाजिब हो जाती है जो मासूमा कुम की ज़ियारत कर ले। 3 दरवाजे जन्नत के मासूमा कुम के कब्जे में होंगे। 3 दरवाजों से मासूमा कुम शियायान अली को जन्नत में दाखिल फरमाएगी। जैसे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम करीमे अहले बैत है, वैसे ही मासूमा कुम करीमा अहले बैत, और गैरे मासूमीन में यानी जो 14 में शामिल नहीं, उनमें से सिर्फ एक है जो लक़ब के तौर पे मासूमा है, और उनका नाम फातिमा है, मासूमा कुम। मासूमा कुम अपने भाई को मिलने के लिए 28 साल इनकी टोटल एज है, तशरीफ लाई। साथ इनके 5 भाई थे, 18 रिश्तेदार थे, भतीजे और अज़ा अक़रबा 23 मर्द थे, और ख़वातीन भी थीं जिनमें मासूमा कुम थी। 23 के 23 को अब्बासियों ने सावा में शहीद कर दिया, और बीबी कुम तशरीफ़ लाई, और बीबी को जहर दिया। सावा में एक औरत के ज़रिए बीबी को जहर दिया गया। बीबी जिस जगह कुम में तशरीफ़ लाई, मूसा बिन खजरज अशारी के दौलत खाना पर 17 दिन वहाँ मेहमान रही। उस जगह का नाम आज बैतुन नूर है, जो मस्जिद है उसका नाम बैतुन नूर है, और वहीं पर मदरसा बनाया गया है, उसका नाम मदरसा सित्तिया है। मदरसा सित्तिया, मदरसा सित्तिया और बैतुन नूर। और मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, मैंने बरस हा बरस रमज़ान मुबारक की रातों में बैतुन नूर में दर्स पढ़ाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दर्स मैं डेली
शब-ए रमज़ान अल मुबारक में बैतुन नूर के अंदर पढ़ाता था, और मैं वहीं बैठता था जहाँ शहज़ादी का वो निशान बना हुआ है, और वहाँ मिंबर लगा होता था। मेरे शागिर्द गवाह हैं कि मैं न तो मिंबर पर मासूमा कुम के हरम में बैठा हूँ, हालांकि मेरे शागिर्दों की तादाद 350 तक पहुँच जाती थी, और न मैं यहाँ कभी बैठा हूँ। मैं कहता था कि जिस जगह बीबी का जसद मुताहर है कब्र, वहाँ पर मुझ जैसा नौकर मिंबर या कुर्सी पे नहीं बैठेगा, ज़मीन पे बैठ के दर्स दूंगा। और जहाँ बीबी तशरीफ़ फरमा रही, मेरी मजाल नहीं मैं कुर्सी पे या मिंबर पे बैठूं, मैं ज़मीन पर बैठकर दर्स देता था। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे मासूमा कुम के बारे में मज़ीद कुछ तफसीलात हासिल करें और उनके साथ अक़ीदत रखें और उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हों, इसलिए कि उनकी ज़ियारत से तो जन्नत इंसान के लिए वाजिब हो जाती है। बीबी मासूमा कुम के बहुत सारे भाई और भी दफन है कुम में। शहज़ादा कासिम, शहज़ादा हमज़ा, शहज़ादा इब्राहीम, इनकी क़ुबूर मुतहरा रोज़ाए मुतहरा की ज़ियारत का शरफ़ रूटीन में हम सबको हासिल होता रहा। और इनके 5 भाई, जैसे अर्ज़ किया है, सावा के अंदर हैं, उनकी कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं। जो ज़ाहिर तशरीफ़ ले जाते हैं वो हारून इब्न मूसा और इसहाक़ इब्न मूसा व दीगर की ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं। इनके 7 भाई आए थे शिराज में, और वहाँ से ये जो शाह रज़ा है बड़ा मशहूर, मैंने ज़ियारत की है इन सब के सब की अल्हम्दुलिल्लाह। 7 भाई बीबी के वहाँ पर हैं, 5 भाई यहाँ पर हैं, और ये 4 बहनें हैं फ़ातिमा के नाम की। मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी भी क़ुबूर मुतहरा हैं, और कुछ यहाँ पर और कुछ दीगर जगहों पे, जिनकी डिटेल इंशाअल्लाह बाद में बयान करेंगे। एक लक़ब बीबी का शबीह फ़ातिमा भी है, ये अजीब है, शबीह फ़ातिमा। और एक बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम का लक़ब जो मशहूर है वो मरियम आले मोहम्मद भी है, इसलिए कि बीबी इतनी इबादत फरमाती थी कि इनका लक़ब पड़ गया फ़ातिमा मासूमा मरियम आले मोहम्मद। बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम का जो एक और लक़ब है वो कुबरा भी है। ये दफन है कुम में। एक इनकी बहन है फ़ातिमा सुगरा, वो आज़रबाईजान में दफन है। ये तारीख़ कुम वाले ने लिखा है, और मैंने बहुत अरसा पहले नोट्स बनाए थे। अब ऐसा ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कुम वाले नोट्स को आपकी खिदमत आलिया में पेश करूँ। और एक इनकी जो बहन है वो इस्फ़हान में दफन है। और एक मेरे दोस्त हैं आयतुल्ला हबीबुल्ला रश्ती, ये इस वक्त माशाल्लाह बहुत बड़ा दर्स खारिज देते हैं कुम में, मेरे क्लास फेलो हैं। एक इन्होंने फरमाया कि बाकायदा रश्त के अंदर एक बहन की कब्र रश्त में है, जिनकी कब्र पे लिखा हुआ है फ़ातिमा अल उखरा बिन्त मूसा इब्न जाफ़र इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न अल हुसैन, ये कब्र पे लिखा हुआ है। और जो इस्फ़हान में है, इस्फ़हान में खुद जा चुका हूँ, ज़ियारत कर चुका हूँ, और भी जो इमामज़ादे हैं वहाँ पर ये लिखा हुआ है फ़ातिमा अल वुस्ता बिन्त मूसा इब्न जाफ़र, ये वहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है। आज की हद तक यही कबूल फरमा लीजिए, क्योंकि वक्त अज़ान करीब है। अल्लाह करीम आपको और मुझे नमाजियों में शुमार फरमाए। आप सब के लिए दुआ करता हूँ, पढ़ने सुनने वालों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। जो ज़की साहब भी आज तशरीफ़ लाए थे, एक और साहब हैं उनका नाम
खाबर साहब बाद में बता देंगे, जो जिन्होंने ज़की साहब से पहले पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, शायद आस्थाना ज़हरा से उनका ताल्लुक़ है। और जो हमारे अहबाब हैं उन्होंने तो पढ़ा ही है, जो ज़रा ढीले हैं उनको मैं टाइट करूँगा कि वो आएँ, पढ़ा करें, थोड़ा इबादत समझ के तशरीफ़ लाया करें। बुध के दिन इंशाअल्लाह बड़ी मजलिस है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह इस जश्न को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।